US nationality and now I want to contest. So I don't know, we have to read it in a way that is meaningful, and we must bear in mind the conditionalities that were imposed to exclude people from this. I mean, the degree situation. Thankfully, it wasn't there when the Qaid was around, because he would have been disqualified. That's right. No, he wasn't a graduate. So, amendment कब हुई? ये amendment 2002 की 8 की 2002 में. किसने की amendment? This was presidential order. क्या वो president खुद इन पे उतर सकता था, इन तमाम requirement पूरी कर सकता था? Military General Ziaul Haq नहीं होते, बाद में डिग्रीज करते हैं, शुरू में नहीं होते. नॉन इलेक्टेड मेंबर्स अगर अमेंडमेंट करेंगे तो यही होगा. Mr. Attorney General, the question is that while we're looking at D, E and G, which to my mind appears to be a guideline for the voters, the actual gatekeepers, and they might keep this in mind when they're voting, because nobody can execute them and put anybody behind anything. So D, E and G to sir guideline ho sakti hai voters ke liye, and that's never been agitated. The $1 million question is, how do we look at the line, no declaration to the contrary by a court of law? What do we do with this? I mean, this is in the Constitution. If I may, I think my lords have raised the questions. Can we read the law on declarations? What is the law on declarations? Section 42 of the Section 42 of the Special Relief Act. I would imagine, is that the only declaration that has been indicated here? There's no other declaration. और तो कोई है नहीं. कोई और law होता है declarations का? Specific Relief Act. Only Special Relief Act, Section 42. Legal character के ऊपर जो है ना, वो that is the only law. Declaratory suits are filed under 62(1)(f). Section 42. Constitution में रहा. ये तो इन्होंने कर दिया ना, बट अगर कोई चैलेंज करेगा तो वो तो 42 में ही करेगा ना. वो नेगेटिव डिक्लेरेशन. इस नेगेटिव डिक्लेरेशन कॉन्सेप्ट है ना. पॉजिटिव डिक्लेरेशन इज नॉट नेगेटिव डिक्लेरेशन. वी हैव हेल्ड इन पैटर्निटी केसेस दैट यू कैन नॉट डू नेगेटिव डिक्लेरेशंस. paternity can किया ना नेगेटिव पॉजिटिव. negative कर सकते हैं paternity. नेगेटिव पॉजिटिव. हाँ, नेगेटिव नहीं हो सकता है क्या? Person regularly character right of any property. दे देना इनको स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट सर. आप अटॉर्नी जनरल को दे देना. कह सकता हूँ कि हम honest. यही दे देना प्लीज. ये मैं दावा फाइल कर सकता हूँ कि झूठा नहीं, मैं honest. Yes. Ji. So that's it. Ji, sir. I have it before me. Mr. Jilani's iPad is very helpful. Discretion of court as to declaration of status or right. Any person entitled to any legal character or to any right as to any property may institute a suit against any person denying or interested to deny his title to such character or right, and the court may in its discretion make therein a declaration that he is so entitled, and the plaintiff need not in such suit ask for any further relief. Bar to such declaration, provided that no court shall make any such declaration where the plaintiff, being able to seek further relief than a mere declaration of title, omits to do so. By the court, to what is understood by court? A civil court? Yes. Under Section 9, or is it a constitutional court? Now, this is it's a civil court where evidence can be led, witnesses can be examined, where a burden of proof is discharged, and then there is an opportunity of rebuttal. Suppose in a case where I've done so even, we observe hearing a civil petition for leave to appeal or an appeal that the appellant had dishonestly filed a suit. Suppose we hold that, and we've held so, and impose costs on him. Will that constitute a declaration of a court of law in terms of Article 62(1)(f)? My respectful submission is no, sir. Why? Because you are not a court where that particular issue is actually conclusively determined through a trial. So we could observe in other cases. We could say in a criminal case that I don't believe this witness, he is a liar. And that witness will then be struck by 62(1)(f), because it's a declaration of a court of law. In a judgment in a criminal case, he was not an accused there, but he was a witness. And the court says, I don't trust this witness, I found him to lie.
My lord, So it's, then you can bring out every case. We may make an observation against a lawyer. He misled the court, for instance. Sometimes we do that. My lord, if I- Regretfully. And then Supreme Court के if a lawyer contests election, the person will say, you have held that he misled the court. He is, of course, how can you allow him now to contest election? He's banned for life. my lord, now, जी साहब एक चीज और देख लीजिए, डिक्लेरेटरी जजमेंट्स का जो सुप्रीम कोर्ट के लिए प्रोवाइडेड है ना, वो आर्टिकल 184 सब आर्टिकल 1 में वो डिक्लेरेटरी जजमेंट्स हैं सूबे और वफाक के दरमियान जो झगड़े होते हैं ना, उसमें लिखा हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट शैल प्रोनाउंस डिक्लेरेटरी जजमेंट. उसके अलावा के डिक्लेरेटरी जजमेंट 184 और 185 में लिखा हुआ है. no, 184.3 is not mere declaration. I mean, 184.3, the court goes on to conduct. शिजा शौकत साहब यहाँ बैठे हैं जो सिविल कोर्ट के माहिर हैं, तो आप बताइए ना ये वाली डिक्लेरेशन कैसे होगी. My lord, दो चीजें ऐड कर पे दूं. बता दें. आप सपोर्ट कर रहे हैं लॉ को या अपोज कर रहे हैं लॉ But I'm supporting the law. The law. I'm against. We want to hear from those who are opposing the law. There's none. So then- apparently नहीं, there's there no is one somebody who said yes. here. Is that here about? ये है ना. जी. I am opposing this. So, yeah, I think in the course of proceedings, Let's hear. the I challenge. just want to understand how the opposition is. That's right. जी बताइए. ये आप अपोज कर रहे हैं तो पहले ये बताइए कि इसको oppose नहीं चैलेंज कर रहे. किया है. मतलब मैं लॉ को इस बारे में अपोज कर रहा हूँ. नहीं, पहले बताइए कि अगर है तो हाई कोर्ट में चैलेंज किया वायरिस को इसकी आपने, मैंने तो चैलेंज नहीं किया. फिर अब क्या अपोज करेंगे हम? गुजारिश ये मालूम क्योंकि समीउल्लाह बलोच केस अगर मौजूद है जो कि कॉन्स्टिट्यूशन कर रहा है. माइक अपने सामने. तो इसीलिए तो आपसे पूछा ना, समीउल्लाह बलोच है, उसके बाद आप समझते हैं कि लॉ गलत अमेंड हुआ है, मालो. 232 गलत आ गया मालो. है, तो वेदर यू हैव चैलेंज द वायरिस इन द हाई कोर्ट और नॉट. That can be challenged before this proceeding, my lord, because that question is just alive before the Honorable and the same notice administration on that question. And in this proceeding, this Honorable Court has every authority to declare the law which has been passed in violating the provision of the Constitution or whereby. पर अभी उस्मान आपने कहा था कि are you supporting life disqualification or I'm सर मैंने कहा था कि I am नहीं उस्मान ने क्या कहा था. मैंने ये कहा है my lord कि जब तक समीउल्लाह बलोच मौजूद है ये लॉ नहीं आ सकता. ये लॉ अल्ट्रा पर मेन केस में आपकी क्या है कि डिस्क्वालिफिकेशन लाइफ को आप सपोर्ट करते हैं या नहीं. मैं डिस्क्वालिफिकेशन को असिस्ट मैं इस पॉइंट पे करना चाहता हूं कि रीविजिट हो सकता है कानून, लेकिन वो इन कंडीशंस के साथ रीविजिट हो सकता है. वो मैं आप एक देखें, वजाहत से बात कीजिए ना, गोलछोल बातें ना कीजिए ना. आप लाइव डिस्क्वालिफिकेशन के फेवर में या खिलाफ हैं, सीधी बात मैं करें लाइव ना. डिस्क्वालिफिकेशन की फेवर में उस हद तक हूं कि अगर समीउल्लाह बलोच प्रवेल करता है. आपसे सीधी अगर बात नहीं पूछिए प्रवेल ना. करता क्या बात? हम ये क्या सवाल जवाब दे रहे हैं आप. नहीं either you support the principle or not. लॉ को सपोर्ट में इसलिए नहीं कर सकता कि लॉ अगेंस्ट द जजमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट है. अगर against the judgment है, इंटरप्रिटेशन रीइंटरप्रेट हो सकती है प्रोविजन. सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट जब तक था उसके बाद पार्लियामेंट ने लॉ अमेंड किया. अगर आप ये कह रहे हैं इसका मतलब है कि सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बाद पार्लियामेंट लॉ नहीं बना सकती. लॉ बना सकती है स्टैट्यूटरी इंटरप्रिटेशन के बारे में, जहां स्टैट्यूट इंटरप्रेट हुआ हो. चलिए लॉ का तो ठीक हो गया, but are you saying that the principle settled in Samiullah Baloch, you agree with it? No, that I don't agree. हाँ, तो वो I want to say that there is some conditions for the on the basis of state decisive principle कि कब वो जजमेंट जो है वो रिविजिट हो सकती है और क्या वो conditions. आप बार बार वही चीज रिपीट ना करें ना. अब आप सीधी बात हमसे कर नहीं रहे हैं. जजमेंट को छोड़ दीजिए 2 मिनट के लिए, लॉ को भी छोड़ दीजिए. हम सिर्फ आपकी राय मालूम करना चाह रहे हैं. आप लाइफ टाइम डिस्क्वालिफिकेशन को 62(1)(f सपोर्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? कुछ हाँ या ना तो कर रहे हैं. मैं नहीं सपोर्ट कर रहा, नहीं कर रहे हैं. अच्छा, हम सुनना चाहते हैं कि कौन सपोर्ट कर रहा है. एक सेकंड ठहर जाए ना, हम लोग सुनेंगे आपकी वक्त पे. कानूनी बात करेंगे तो करिए. आ जाइए, बताइए. एक सेकंड, लेट अस हियर मिस्टर समीउल्लाह बलोच, द पर्सन हिमसेल्फ. जी सनाउल्लाह बलोच. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. शुक्रिया मोअज़्ज़ज़ साहिबान. ये आपका ये केस है? जी सर, ये मेरा ही केस है. ये तो लिखा है समीउल्लाह बलोच. Sir, Samiullah Baloch is my brother, and Abdul Karim Nosharawani, I am the aggrieved person because I contested the election against तो समीउल्लाह बलोच कहाँ है? Abdul Karim Nosharawani. Sir, he is my brother because the case is mine. So आप उनके अटर्नी हैं, आप कैसे आप पेश हुए थे क्या? जी हाँ, मैं पेश हुआ हूँ सर.
बिकॉज मैं एग्रीड पार्टी हूं, जो मैंने अच्छा 2002 के बाद जब इलेक्शंस हुए, मैं उसकी तफसीलात में बात तफसील ना बता देना, आप बता दें किस ग्राउंड पे आप करना चाहते हैं। मैं ग्राउंड पे सर, ग्राउंड ये है कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल जो प्रिंसिपल्स हैं उसके तहत सुप्रीम जो जुडिशल सुप्रीमेसी है उसको मद्देनजर रखते हुए ये ऐसी बातें ना करें अदालत में। जुडिशियल सुप्रीमेसी क्या चीज होती है? मैं सर अगर आपकी इजाजत नहीं ऐसी बातें ना करें हमसे। sorry. कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीमेसी की बात सुनी थी हमने, अब आप जुडिशियल सुप्रीमेसी का मैंने कॉन्सेप्ट नहीं सुना है सर। ये जो नहीं देखिए कानूनी बात करें ना, ये ऐसी बातें ना करें सर, ये जो आर्टिकल 62 और 63 है, ये कॉन्स्टिट्यूशन में गुज़िश्ता 50 साल से और बिलखुसूस 18वीं तरमीम के बाद इसमें कुछ तरामीम हुई, लेकिन पर्टिकुलरली 62(1)(f) में तरामीम नहीं की गई। ये टोटल 5 सफ़ात पर मुश्तमिल कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर बहुत क्लियरली एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स दिए गए हैं हक के नुमाइंदगी के लिए, इख्तियारात के लिए। कहने का मकसद ये है कि सर जब ये 2013 के बाद से जब ये, अगर आप कह रहे हैं ना 50 साल से ये स्टैट्यूट बुक्स पे है, तो पहले क्यों नहीं कभी कोई डिस्क्वालीफाई हुआ? मैं इस पे आ रहा हूं सर। बात ये है कि सर ये जो है 2002 के बाद से ज़ेर बहस आया। ये 20 साल से सर सुप्रीम कोर्ट और बलूचिस्तान हाई कोर्ट और दीगर कोर्ट्स में ये तफसील के साथ ये ज़ेर बहस रहा है मौजू, और इसमें 62 और 63 की बहुत ही क्लियरली केयरफुली मेटिकुलसली जो है सर इसकी तशरीह की गई है मुख्तलिफ केसेस में। मेटिकुलसली ऐसे तो ना बातें करें ना आप, सर मैं पॉइंट पे आ जाएं। पॉइंट पे आता हूं। तो सर जब एक कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जब 63 की जब बात की जा रही है कि वहां 5 साल का तयन किया गया है, क्यों 62(1)(f) में नहीं किया गया? उसकी बुनियादी वजह यह है सर, जब मैं एज ए मेंबर पार्लियामेंट में जाता हूं, जब डिक्लेरेशन देता हूं, वो ओथ है। मैं ओथ में ये कहता हूं कि मैं शहरी हूं, मैंने BA पास किया है, मेरी उम्र 25 साल है। ये जब मेरे खिलाफ जिस शख्स ने कंटेस्ट किया था, जब मैंने उसको कंटेस्ट किया कोर्ट में, उसकी उम्र 24 साल थी। इलेक्शन में क्योंकि उसके पास वालिद के पास BA की क्वालिफिकेशन नहीं थी, तो उसका क्या हुआ कि उसमें 5-6 मिस रिप्रेजेंटेशंस की, उसमें फ्रॉडरी की, और जो डिग्री है फैक्ट्स पे ना जाए ना, अब ये बता जल्दी बता दे। इस जगह ही सवाल है आपसे, आप ये कह रहे हैं ना कि ये जो डिक्लेरेशन जो हमें समझ नहीं आ रही सिचुएशन की, वो ये है कि मैक्सिमम झूठ बोला ना उसने, फॉर्म में झूठ बोल दिया, मिस डिक्लेरेशन कर, तो झूठ की सजा ये है कि वो सारी उम्र के लिए इलेक्शन प्रोसेस से आउट हो गया। ये लिखा हुआ है आइन। दूसरी तरफ हम पढ़ते हैं तो अगर कत्ल भी कर दिया, ट्रीजन भी कर दिया, तो फिर भी कुछ टाइम गुजरेगा तो वापस आ सकता है। ये बात रिकंसाइल नहीं हो रही है सर। ये जो केस आपका समीउल्ला बलोच आपके सामने, आप अपना बताएं। मैं अपना बता रहा हूं सर। मैं आपको आप केस को 1 मिनट रहने दें, आप अपना व्यू बताएं। मेरा व्यू ये है सर, बीइंग ए पॉलिटिशियन आप बता कि 63 के बाद जब किसी शख्स को सजा होता है तो वो एक स्टिग्मा है, उसके माथे पे एक दाग लग जाता है, वो 2 से 4 साल कैद का गुजारता है, पूरे माशरे में उसकी फैमिली सफर करती है, फाइनेंशियल सफर करता है, मॉरली सफर करता है, उसकी जारी सोसाइटी में उसकी अहमियत और हैसियत कम हो जाती है। उसके बाद जब वो निकलता है तो उसके बाद इजाजत है कि 5 साल के बाद वो जाए, अगर उसके पास गुंजाइश है वो आपके पास जाए। लेकिन इसमें सर जब आप एंट्री पॉइंट पे झूठ बोलते हैं, जब आप दाखिले के वक्त नहीं, जैसे आपने कहा, देखिए एक पॉइंट लेते हैं, 24 साल का था, आपने कहा कि उस वक्त वो 25 साल का नहीं था। 24 साल का तो सिर्फ एक ही पॉइंट होता, उसके डिक्लेरेशन पे आपने उसको चैलेंज कर दिया, वो प्रूव हो गया कि 24 साल का है। आपकी राय में वो फॉर लाइफ डिस्क्वालीफाई हो जाएगा, फिर वो इलेक्शन कंटेस्ट नहीं कर सकता। Is it your point? With your honorable permission, सर अब वजह क्या हुई उस वक्त? पहले ये मेरी वजह, यही पॉइंट है आप सर। मेरी ये पॉइंट उस वक्त इसलिए सुनी जब नहीं गई, वो शख्स दाखिल हो गया, उसने वो चेक बैरियर क्रॉस कर लिया, वो झूठ के बावजूद वो बलूचिस्तान में वजीर दाखिला बना, जो अभी से पहले केस। फिर जातियात पे ना जाइए। नहीं सर, हम जातियात को छोड़ दीजिए, हम आईनी नुक्ते की बात कर रहे हैं। हो सकता है बहुत बुरा आदमी है, हम उसमें नहीं जाना चाहते, तो आप जातियात को छोड़ दीजिए, आइन की बात करें। आप पार्लियामेंटेरियन है ना, हम जातियात पे बहुत सकता है अच्छा आदमी बुरा आदमी, वो हमारे सामने बहस नहीं हमने करेंगे, क्योंकि हम एक जनरल प्रिंसिपल तयन करना चाह रहे हैं। सनाउल्लाह बलोच साहब, देखिए मैं आपको बता, जो हमारे लिए कंपैरिजन में प्रॉब्लम आ रही है ना, एक तरफ 63A में आप जितना मर्जी क्राइम कर दें, आप कुछ अरसा सजा काटें, 5 साल गुजारें तो वापस आ जाए। हमें ये प्रॉब्लम हो रही है कि सिविल डिक्लेरेशन में सजा नहीं है, कोई सजा तो उसने नहीं काटी, सिवाय ये सजा उसने काटी कि वो वाला इलेक्शन मिस हो गया उसका।
اگلے الیکشن میں تو وہ آ سکے نا. اب یہ کہنا کہ اگلے الیکشن میں بھی نہیں آئے گا, کبھی بھی نہیں آئے گا, یہ ہمیں سمجھ نہیں آ رہی کہ سول اس نے جھوٹ بولا, جھوٹ کی سزا آپ نے دی کہ تم اس نامینیشن پیپر ریجیکٹ ہو گئے تمہارے, تم نے الیکشن نہیں لڑا, سزا مل گئی نا. جو کرمنل سائڈ پہ اس کو ویسے سزا مل رہی, سول سائڈ پہ یہ سزا ہو گئی. اب آگے چلے نا, اب وہ کیا اس نے جو ایک جھوٹ بول دیا, مس ڈیکلیریشن کر دی, اب وہ ساری عمر کیسے. دوسری طرف پھر تو ہونا آئین میں ہر جگہ لمیٹیشن ہے, ٹائم کی سٹوری ہے ہر جگہ, تو پھر اس جگہ بھی تو کچھ ہونی چاہیے نا. عجیب لگتا ہے. میں اس حق میں ہوں کہ 232 ابھی جو جون یار میں اس حق کی بات چھوڑ دیں نا, اگر دیکھیں اچھا ایکچولی آئی ایم اسپاٹنگ از دیٹ مختوم علی خان, کین وی ریکویسٹ یو ٹو, since Mr. Makhdoom Ali Khan has written on the constitution, I don't know if he's involved in any case before us. Are you in these matters? Huh? Yes. Which case are you in? I have filed a CMA 6 of 2024. For whom? In favor of disqualification or lifetime or not? My lord, not in favor. Are you not in? Why? Who have you filed it for? For Mr. Jahangir Khan Tareen, my lord. Okay. Now, one thing which nobody has attended to yet, at least one way of interpreting the Constitution is what the original Constitution said. And this Constitution has been, I don't know what's the correct word, changed or ravaged from time to time, what you want to use it. Can we read the original Constitution as it was enacted in 1973? My lord. And see what the Constitution then said. My lord, I will read that provision to your lordship. That Would you like to do it, or shall we ask the Attorney General to do so? as your lordship pleases, the history is... No, we were thinking of appointing you as amicus, but you are representing a party, so anyways, let's... as your lordship pleases. Nahi, padhe 62, do you have the original Constitution? Yes, my lord, I have, and the history is traced in Samiullah Baloch. No, we want to read the actual text. The text is there. 85. Ye de de inko, wo de de inko. Yeah, we have it, my lord. Qualifications for membership of parliament. Can you come to one of the other